Next part, we are going to start compound journal entry. Normal journal entry using traditional classification. We have done that in the part 1 and part 2 videos. Now the part 3 where we are going to start with compound journal entry. तो अभी तक हमने क्या किया था, जब सिर्फ एक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे थे, एक अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि only there are going to be one account for debit or credit. There can be more than one account, any of the side or both of the side. दोनों साइड पे एक से ज्यादा हो सकते हैं, किसी एक साइड पे एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उनको कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं. सो दैट इज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन on the same date relating to one account or one nature. So what is going to happen, for example, आप एक्सपेंस कर रहे हो आज की तारीख पे 13 जून को, 13 जून को यू आर डूइंग एक्सपेंस. आपने कैश में एक्सपेंस किया. फॉर एग्जांपल आपने रेंट भी पे किया, आज आपने सैलरी पे किया, आपने कमीशन की पेमेंट करी. तो ये सारे क्या है नेचर, तीनों की नेचर क्या है, एक्सपेंस कैटेगरी है और तीनों ही आप कैश में कर रहे हो. सो you can pass 3 transactions: salary to cash, commission to cash, rent to cash. And the other way to go with it is only passing one journal entry, which is compound journal entry, and which is going to be ज़्यादा better, is going to be your compound journal entry, जहाँ पे आप salary debit कीजिए, commission debit and rent account debit to cash account. 3 transactions pass करने की जगह पे आप एक ही transaction pass कीजिए, and that is going to be compound journal entry. When there is one, there can be one account debit and several account are going to be credited, one account credited and several account may be debited, or there can be the case several account debited and several account credited. So we'll see the example for the same. Here you can see the exactly same case what I said. Here what is happening, stationery की पेमेंट हुई है, रेंट की पेमेंट हुई है, सैलरी की पेमेंट हुई है. सो पेमेंट है, which nature is expense है, which nature of accounts are these? Nominal. Nominal में expense, nominal के रूल के अकॉर्डिंग expense को हम क्या करते हैं, डेबिट. So what is going to happen? Stationery account debit, rent account debit, salary account debit to cash account. Similarly, I'll just go with it so that I'll show you the amount figures as well. So stationery account, then there is rent account, then there is salary account. So this is happening, and to cash, सब कुछ cash में payment हो रहा है. So this is going to happen like this. Proper अगर हमने इसको करना है तो आप यहाँ पे proper debit लिखेंगे, and आपको तो properly format में ही करना रहेगा. So ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया. Now very important part is how to write down the amounts. As I said, double entry system का rule apply होता है that both debit and credit amount should be equal. ये नहीं है डेबिट आप 200 से कर दो और क्रेडिट आप 2000 से कर दो. Not like this. So for that, what is going to happen? जितने की आपने पेमेंट करी है उतना अमाउंट उस पर्टिकुलर अकाउंट के आगे लिखेंगे. स्टेशनरी अकाउंट कितने का करा है, 200 का. रेंट अकाउंट 500 की पेमेंट करी है आपने, एंड सैलरी 2000 की पेमेंट करी है. सो दीज आर द डेबिट अमाउंट. नाउ क्रेडिट, आपने टोटल कैश कितना पे किया है, 2000 प्लस 500 प्लस 200, दैट इज 2700. तो क्रेडिट साइड पे 2700 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ एनी वन पर्टिकुलर अमाउंट. अगर अलग अलग ट्रांजेक्शन करते तो अलग अलग रहता. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये अलग अलग दिए होते कि स्टेशनरी अलग से पेमेंट हो रही है, रेंट की अलग से पेमेंट हो रही है, सैलरी की अलग से हो रही है, और डेट्स अलग हैं. अगर ये फॉर एग्जांपल 1 जून की है, ये 2 जून की है, 3 जून की है, in that case all the transactions are going to be of different account, different entry you have to pass in that case. उस केस में डिफरेंट होगी. अगर डेट सेम है, नेचर सेम है, अकाउंट सेम है, उस केस में आप एक सिंगल एंट्री पास करोगे. अगर सेम है, नेचर वगैरह सब कुछ सेम है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया, लेकिन डेट्स अगर अलग अलग है, एक किसी डेट की है, किसी डेट को आपने कैश में पेमेंट करी है, चेक में पेमेंट करी है, इन दैट केस देयर विल बी, आप सेम एंट्री नहीं पास कर सकते, फिर आपको अलग अलग 3 एंट्रीज पास करने रहेंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज लाइक पेमेंट मेड टू राम ₹1000 in cash.
Payment made to Ram, he allowed a cash discount of 50. Payment to Ram was pending 10,050. आपको राम को जो पेमेंट करनी थी वो 1050 की करना था, और आपने पेमेंट मेड टू राम इज 1000. पेमेंट मतलब आप कर रहे हैं, तो कैश इज गोइंग आउट, तो कैश तो विदाउट इन डाउट डेबिट हो, क्रेडिट होगा यहाँ पे. राम जो है उसको पेमेंट हो रही है, सो राम इज द रिसीवर. सो राम के अकाउंट को, बिकॉज राम इज द रिसीवर, राम को हम डेबिट कर देंगे. कितना पैसा उसे रिसीव हो रहा है? 1000. ठीक है जी. किस फॉर्म में हो रहा है? कैश में हो रहा है, और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो हम कैश को कर देंगे क्रेडिट. कितना कैश में पेमेंट कर रहे हो? 1000. लेकिन होनी कितनी थी उसको पेमेंट? 1050 की होनी थी, लेकिन आप 1000 रुपए की पेमेंट कर रहे हो. इट मींस आपको पेमेंट करनी थी 1050 की, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो 1000 की. इट मींस आप 50 रुपीज आपको मुनाफा हो रहा है, या आप कह सकते हो 50 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल रहा है. कैश डिस्काउंट कह सकते हो उसको, और आप कह सकते हो कि आपको एक तरीके का फायदा हो रहा है. सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू पास दैट पर्टिकुलर थिंग ओपनिंग अकाउंट ऑफ डिस्काउंट. इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोला जाता है, बिकॉज यू आर रिसीविंग इट. तो अगर क्रेडिट साइड पे होता है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्काउंट अलाउड. दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड बिकॉज यू आर रिसीविंग. एंड इफ यू कैन सी कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे? नॉमिनल नेचर में जा रहा है, और ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये गेन है तो हमने क्रेडिट कर दिया. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. कंपाउंड जर्नल एंट्री. One more compound journal entry, we'll go with it. Cash received from Suresh 800. कैश आ रहा है, विदाउट एनी डाउट कैश जो है आपका डेबिट होने, कैश जो है आपका डेबिट होने वाला है 800. 800 रुपया आपके पास आ रहा है, और आपने उस बंदे को 50 रुपीज डिस्काउंट दिया है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि डिस्काउंट आपने कितना उसको दिया है, अलाउड हिम ₹50. तो ये आपको डिस्काउंट देना पड़ा है. तो ये एक तरीके का कह सकते हैं कि आपको 850 रुपीज आने थे, लेकिन आपको आए कितने हैं? 800. तो एक तरीके का 50 का आपने डिस्काउंट दिया है, और आप कह सकते हो एक तरीके का आपको नॉट एग्जैक्टली काइंड ऑफ नुकसान आपको हुआ है, पर yes you were the payment you should receive was 850, but right now you are receiving only 800. So 50 is your discount you are giving to that person. So this is a case of compound journal entry, जहां पे आपको एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट, और बोथ साइड डेबिट और क्रेडिट आर गोइंग टू हैपन विद मोर देन वन अकाउंट. सो दिस इज हाउ इट गोज. लाइक ये भी है, सेमी नेचर के केसेस हैं, जहां पे व्हाट यू हैव टू डू इज कंपाउंड जर्नल एंट्री है, सेल्स हो रही है, देन अमाउंट हो रहा है. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनल सेटलमेंट. इफ दिस वर्ड इज रिटन इन एनी ऑफ द वी कैन से एंट्री और ट्रांजेक्शन की आपका फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट आप दे रहे हो. व्हाट इज गोइंग टू हैपन whenever this is going to happen, you are going to see like कि फाइनल सेटलमेंट हो गई है, या फुल अमाउंट पेमेंट हुआ है, या फुल सेटलमेंट हो गया है. सो इन दैट केस इट इज सिंपली मीन्स, अगर आपको ना उस केस में पीछे का देखना पड़ेगा कि ये महेश से रिलेटेड कुछ केस हुआ है, तो महेश के साथ हमारा पास्ट में कुछ हुआ था क्या? तो यहाँ पे महेश जो है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू महेश. आपने महेश को 20,000 की गुड्स सेल की थी, और उसका 17th ऑफ नवंबर, और यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आपने कैश में रिसीव करी थी. और जब नहीं लिखा कैश में रिसीव करी थी, आई टोल्ड यू इफ नथिंग इज मेंशन वी आर गोइंग टू अज्यूम कैश. बट इफ इट इज रिटन कि महेश को, इन केस ऑफ सेल एंड परचेज दिस इज गोइंग टू हैपन, अगर नाम गिवन है ना उस बंदे का, तो इन दैट केस इट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन क्रेडिटर और डेटर्स उस केस में क्रिएट हो जाएंगे. उस केस में आप कैश एज्यूम नहीं करेंगे. अगर बाय चांस यहाँ पे होता सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000, कुछ नहीं लिखा है, इसको आप कैश मानेंगे. बट अगर पर्सन का नाम लिखा है सेल एंड परचेज में, दैट इज गोइंग टू हैपन अगेन. डेटर एंड क्रेडिटर आपके वो बंदे बन जाएंगे, जो जिसका भी नाम होगा उस बंदे का, उस पर्सन का अकाउंट यू आर गोइंग टू ओपन. डन. सो महेश को आपने 20,000 की गुड्स सेल की थी. नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज कि उसको फाइनल सेटलमेंट आपने करी है 19,800 की. दिस मीन आपको अब महेश का अकाउंट ना बंद कर देना है. यू हैव टू क्लोज महेश अकाउंट.
Why? Because आपने full final settlement कर दिया है. अब महेश is not going to have any not going to pay you a rupee. अब कोई पैसा नहीं देने वाला आपको. तो जो 200 रुपए का डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि हमें अकाउंट्स में उस 200 रुपए के डिफरेंस को भी दिखाना पड़ेगा, दैट डिफरेंस इज गोइंग टू बी डिस्काउंट अलाउड. आपको 20,000 आना था लेकिन आ कितना रहा है 19,800. सो दैट 200 इज गोइंग टू बी डिस्काउंट अलाउड. आई विल जस्ट शो यू दिस. सो दिस इज गोइंग टू हैपन. महेश टू सेल्स होगी फर्स्ट एंट्री और सेकंड में आपको 19,800 आ रहा है और 200 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो. सेम केस विद दीपक का केस. दीपक से आपने परचेज किया था 30 का और यहाँ पे तो प्रॉपरली लिखा है कि आपको 29,500 रिसीव हो रहे हैं. सॉरी, यू आर पेइंग 29,800 और 500 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है. इट इज प्रॉपर एग्जैक्टली मेंशन ओवर हियर कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है एंड आपको पेमेंट इतना करना था. बट इस केस में नथिंग वाज मेंशन, बट ये फुल सेटलमेंट और फाइनल सेटलमेंट इफ इट इज मेंशन, तो आपको उस पर्सन का व्हाटएवर द पर्सन इज डेटर है या क्रेडिटर है, यू हैव टू क्लोज दैट पर्सनस अकाउंट. So with this, done compound journal entry also. So if any issue, you can write down in the comment section so that I can take those queries as well. Okay, going to end this meeting.